8.1, question number 11. This is triangle ABC and this is triangle DEF. AB equal to DE and AB parallel DE given. BC and DEF are equal and parallel. To prove, ABED is a parallelogram. Proof. In quadrilateral ABED, it is given that AB equal to DE and AB parallel DE. From equation 1 and 2, AB and DE both are equal and parallel in same quadrilateral ABED because same pair of opposite sides are equal and parallel in quadrilateral ABED. Therefore, quadrilateral ABED is a parallelogram. Because ABED is a parallelogram, therefore we can say that AD equal to BE and AD parallel BE. Therefore, AD equal to BE and AD parallel BE. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. Second part. Prove that BEFC is a parallelogram. In quadrilateral BEFC, BC equal to EF and BC parallel to EF. Because same pair of opposite side is equal and parallel, such type of quadrilateral BCEF is called a parallelogram. Because BCEF is a parallelogram, therefore its opposite side will be equal and parallel. So therefore CF equal to BE and CF parallel to BE. Equation number 3 and equation number 4. Third part, we have to prove that AD is equal to CF and AD parallel CF. Proof. Comparing equation 1 and equation 3. 1 और 3 की कंपैरिजन करेंगे. 1 में क्या है AD इक्वल टू BE, 3 में क्या है CF इक्वल टू BE. तो AD और CF इक्वल होंगे क्योंकि दोनों BE के इक्वल हैं, तो AD इज इक्वल टू CF. सिमिलरली कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 8. 4 में क्या है AD इक्वल टू BE, AD पैरेलल टू BE, और 8 में क्या है CF पैरेलल BE. तो दोनों ही BE के पैरेलल हैं, तो AD और CF भी आपस में पैरेलल होंगे. इक्वेशन नंबर 10. हैंस प्रूव्ड. फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में हमको प्रूव करना है ACFD इज ए पैरेललोग्राम. कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन नंबर 10. इक्वेशन 9 और 10 की कंपैरिजन करेंगे. इक्वेशन 9 और 10 में हमने क्या प्रूव किया था? AD इक्वल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF. AD CF के इक्वल भी है, AD CF के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. देयरफॉर ACFD इज ए parallelogram because same pair of opposite sides are equal and parallel in quadrilateral ACFD. Therefore quadrilateral ACFD is a parallelogram. Hence we have proved part 4. Part 5th, AC equal to DF prove करना है. Because opposite sides of parallelogram are equal, therefore AC is equal to DF. अभी हमने प्रूव किया कि ACFD is a parallelogram, तो therefore its opposite sides AC equal to DF. सिक्स्थ पार्ट में हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF. इन दोनों ट्राइंगल्स में AB इक्वल टू DE गिवन है, BC इक्वल टू EF ये भी गिवन है, और AC इक्वल टू DF अभी हमने प्रूव किया है. देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF SSS कॉन्ग्रुएंस. Question number 12. It is given that ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD. AB is parallel to CD.
एंड AD इज इक्वल टू BC। ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं AD और BC ये भी इक्वल है। नंबर 1 हमको प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। नंबर 2 एंगल C इक्वल टू एंगल D। नंबर 3 ट्राइंगल ABC, AC को मिला देंगे ट्राइंगल ABC बन जाएगी, एंड ट्राइंगल ABD, BD को ज्वाइन कर देंगे बन जाएगी ट्राइंगल BAD। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एंड AC और BD जो कि डायगोनल है इनको भी इक्वल प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन, फ्रॉम C we will draw a dotted line which is parallel to AB which intersect AB produced at it, जो AB को आगे बढ़ाने पर E पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूफ, नंबर 1 CE parallel to AD it is by construction equation 1 and AB parallel to CD by given। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं AE पैरेलल CD इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो AECD इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर AECD इज ए पैरेललोग्राम। बिकॉज AECD इज ए पैरेललोग्राम देयरफॉर को इंटीरियर एंगल A प्लस E का सम होगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 3, को इंटीरियर एंगल्स A और E, एंगल A और E इंटीरियर एंगल हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AE है और AD और CE पैरेलल भी हैं, तो एंगल A प्लस E का सम होगा 180 डिग्री। एंड लीनियर पेयर एंगल, एंगल ABC प्लस CBE, यह एंगल CB, दोनों का सम होगा 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 एंगल A प्लस BE इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABC प्लस CBE के, क्योंकि दोनों ही 180 के इक्वल हैं। नाउ AD इज इक्वल टू BC गिवन, AD इज इक्वल टू BC इट इज गिवन इक्वेशन नंबर 6 एंड AD इज इक्वल टू CE, क्योंकि अभी अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है AECD को, तो AD इज इक्वल टू CE अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वेशन नंबर 7। फ्रॉम 6 एंड 7 AD BC के इक्वल है और AD CE के इक्वल भी है, तो BC और CE आपस में इक्वल होंगे। BC और CE पढ़ते हैं ट्राइंगल CBE में, क्योंकि साइड BC और साइड EC इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल CBE या EBC इक्वल होंगे एंगल BEC के। तो एंगल E इक्वल टू एंगल CB, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल इन ए ट्राइंगल। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे। एंगल A की जगह एंगल AE आएगा, एंगल E की जगह हमने CBE लिख दिया, अभी अभी प्रूव किया था, इक्वल टू एंगल ABC प्लस CBE। ABC से एंगल CBE एंड CB विल कैंसिल ईच अदर, एंगल CBE एंड CB विल कैंसिल ईच अदर, और बचेगा हमारे पास एंगल A इक्वल टू एंगल ABC। यह है एंगल ABC। प्रूव करना था हमको एंगल A इक्वल टू B। एंगल B कौन है? ये एंगल ABC ही है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल ABC हैंस प्रूव्ड, पार्ट 1। नाउ लेट अस कम टू सेकंड पार्ट। Now let us come to second part. In second part, we have to prove that कि एंगल C इक्वल टू एंगल D, AB एंड CD आर पैरेलल लाइन्स, AB एंड CD आर पैरेलल लाइन्स, इट इज गिवन, एंड AD इज देयर ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बने एंगल A और D का सम होगा 180 डिग्री। इक्वेशन 9, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे ही एंगल ABC
और एंगल BCD, ये भी दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, इनका सम होगा 180। इक्वेशन नंबर 10। फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 एंगल A प्लस D इक्वल टू हो जाएगा एंगल ABC प्लस BCD के, और एंगल A की जगह हम लिख देंगे एंगल ABC, पहले हम प्रूव कर चुके हैं पार्ट 1 में, प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BCD। एंगल ABC से एंगल ABC कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास एंगल D इक्वल टू एंगल BCD। तो एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल D, यही हमको प्रूव करना था। वैसे प्रूव करना था एंगल C इक्वल टू D, इस एंगल C का ही पूरा नाम है एंगल BCD इक्वल टू एंगल D। थर्ड पार्ट में हमको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD। इन दोनों ट्राइंगल में एक तो AD इक्वल टू BC गिवन और AB कॉमन साइड, एंगल A इक्वल टू एंगल B फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BAD, S से S कॉन्ग्रुएंस रूल। तो AC और BD भी इक्वल होंगे, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है CP CT। थैंक यू।